کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی سر، صرف مطلب سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا آج ڈالر 4 روپے کم ہو گیا ایک ابھی چلا یہ الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جس دن عدم اعتماد کامیاب ہوگی آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کدھر پہنچتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ سی ایم صاحب جو ہے نا وہ اپنا صوبہ چھوڑ کے اسلام آباد میں جا کے اتنا لمبا عرصہ باہر گزارنے کی اس کو کیا ضرورت تھی۔ وہ یہاں بیٹھتے اضلاع کا دورہ کرتے، لوگوں سے ملتے، مسئلہ مسائل دیکھتے، وکلاء سے ملتے، صحافیوں کے ساتھ اپنی اچھی انٹریکشن رکھتے، گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے، تو کل کلا سی ایم کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوتی تو میرے خیال میں پبلک کم از کم جو ہے نا وہ اٹھ کھڑی ہوتی اور کانفیڈنٹ ہو گئے۔ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا سب سے بہترین فیصلہ خالد خورشید کو چیف منسٹر، اس نے بھی اس کو شاید خراب کیا نا بہت زیادہ۔ میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے کہ چیف منسٹر اگر پیپلز پارٹی سے آتا پی ڈی ایم میں تو گورنر شاید نون لیگ کا ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این اور حالات حاضرہ کے پروگرام میں آج گفتگو ہوگی عدم اعتماد کی تحریک پاکستان میں، اس کے اثرات گلگت بلتستان میں، اور اپوزیشن لیڈر امجد حسین ایڈوکیٹ بھرپور طریقے سے سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال اور یہاں پہ عوام کو درپیش مسائل پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے ہفتے کے روز، اس کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اس صورت میں گورنر گلگت بلتستان کیا ریزائن کریں گے یا ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا؟ ان تمام تر موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار شبیر میر سر، ویلکم کرتے ہیں۔ کیوں سر؟ صورتحال سر 99% تو واضح ہو گئی فیڈرل میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ فیڈرل میں بالکل کل تو میرے خیال میں کوئی کسر اب باقی نہیں رہ گئی ہے، لیکن چونکہ سرپرائزز عمران خان صاحب دیتے آئے ہیں جیسے بھی ہیں، اور جو بڑا سرپرائز ان کا جو تھا وہ ڈپٹی اسپیکر سے جو انہوں نے کروایا، اور اس کے بعد یہ ہفتے کا جو تعطل آیا پھر سپریم کورٹ نے جا کے سیٹل کیا، تو اب میرے خیال میں مزید گنجائش سرپرائزز دینے کی نہیں ہے۔ اب کل یا تو اگر پتہ نہیں، میں زیادہ لیگل معاملات میں مجھے نہیں پتہ، ایک ہی آپشن شاید ہے، یا استعفے دیں یا پھر آؤٹ ہونے میں، یعنی مطلب وہ عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کریں، لیکن زیادہ چانس ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لگتا ہے صحیح ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد جی بی میں کیا ہوگا۔ 95% تو امکان یہ ہے کہ عدم اعتماد کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے حلف اٹھائیں گے اور منڈے کو ان کا پہلا دن ہوگا آفس میں۔ بہت بڑی کوئی اگر تلپٹ عمران خان نہیں کر جاتے ہیں، اس صورت کی بات کر رہے ہیں صورتحال کی، جس کے وہ 1% چانسز ہیں، اس صورت میں اگلے چند دنوں ہفتوں میں جی بی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا چیف منسٹر ریزائن کریں گے یا گورنر ریزائن کریں گے یا گورنر کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا؟ ایک چیز آج میں نے بڑی اچھی دیکھی، ایم کیو ایم کے جو اسپیشل کوآرڈینیٹر تھے، جن کے پاس آئی ٹی کا محکمہ بھی ہے، منسٹر ہیں آلموسٹ تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ تو یہ ایک مثال انہوں نے تو قائم کی، لیکن یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ کیا شہباز شریف کے ساتھ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ نہیں، شاید یہ ان کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہ ہو۔ اچھا جی، ایک تو یہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے کہ کہیں پہ یہ چیف منسٹر بھی ادھر ہیں، یہ سوچا جا رہا ہے کہ ادھر بھی عدم اعتماد کی جس کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، تو ان کو تو یقین ہے کہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم ریزائن کریں، مطلب اسمبلیاں خود ہی تحلیل کریں۔ اچھا، یہ بھی چل رہا ہے اور اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈیلے ہے کہ کل کا کس کروٹ بیٹھے گا، مطلب جو معاملہ ہے سپریم کورٹ نہیں، وہ کروٹ بیٹھنے کا 99% تو کروٹ بیٹھ گیا ہے، لیکن جو رسمی کارروائی ہے نا شاہ صاحب، یہ اس کو کل ہونے دیں گے۔ اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ سرپرائز ادھر سے یہ آ سکتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل خود سے، اس سے پہلے کہ کوئی اور عدم اعتماد کے لے کے آئے۔ لیکن پھر بات یہی ہے کہ اس پہ میری خواہش ہو سکتی ہے، کسی ایک دو کی خواہش ہو سکتی ہے، سب کی خواہشیں نہیں ہے، اس کامیابی نہیں پتہ ہے، یہ کہیں زر بے اثرا ہے۔ دوسری بات، آج آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے امجد کے زیر قیادت، اور یہ اسپیکر کانفرنس ہال میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپوزیشن نہیں، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے نا،
मैदान छोड़ के भाग गए, ये बहरहाल कड़ियाँ मिल सकती हैं, ये मैदान छोड़ के भाग गए। इनको हाल ऑफर किया गया है, आखिरी गेंद तक खेलना चाहिए था, आखिरी गेंद तक खेलना चाहिए इनको, ये चाहिए, ये जो कह तो रहे हैं। लेकिन सर आप क्रिकेट में वो 5 खिलाड़ी दूसरी टीम से मिल जाएं तो उसके बाद तो फिर मैदान छोड़ना ही बेहतर है। देखें बिल्कुल वो विकेट कीपर भी छोड़ जाए, जो वाला मामला है ना शाह साहब, ये बज़ाहिर छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मिल गए, हाल खोला गया है, बाकायदा स्पीकर क्यों खोलता है अपोजिशन लीडर के लिए अपना हाल? सर हवाओं का जो वो होता है ना, कहीं रुख देख के आप फैसले कर जाते हैं ना, अक्लमंद लोग हैं हमारे लोग तो बहुत, ऐसा ही है। जीबी के पॉलिटिशियंस बड़े सियाने हैं, ये बहुत अच्छी तारीख है इनकी। आपको याद है ये PMLN और तहरीक जाफर पाकिस्तान ये अलायंस में 99 याद है, आप इसके ऊपर जरा रोशनी जरूर 99 में ये कोalition हुकूमत थी, PMLN और तहरीक जाफर पाकिस्तान। फिदा मोहम्मद नशाद साहब डिप्टी चीफ थे, तहरीक जाफर पाकिस्तान के टिकट पे लड़के आए थे। 2001 में मुशर्रफ साहब ने तहरीक जाफर पाकिस्तान और सिपा साबत दोनों को कलअदम करा दिया। उसके बाद वो तहरीक जाफर पाकिस्तान वाले दौड़े दौड़े FCNA गए, वहाँ जाकर उन्होंने कहा जी हम तो तहरीक जाफर पाकिस्तान को जानते नहीं, ये है क्या। उसके बाद जो हुक्मरान पार्टी का जो भी मामला था उसमें उन्होंने तौबा ताइब किया। उसके बाद वो फिदा मोहम्मद नशाद भी बरकरार रहे, क्योंकि उस वक्त कोई फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह तो नहीं था। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये बड़े सियाने लोग हैं, इसमें एकदम से वो अपना स्विच ओवर कर जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में एक तो CM साहब से जो मैं समझता हूँ जो बेसिक गलती हो गई है, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, 2 एजेंडे रियासत के थे। एक एजेंडा तो ये था कि अबूरी आइनी सूबा, बहुत तेज़ी में रियासती इदारे काम कर रहे थे, सितंबर के पहले हफ्ते में इनको मुसवदा दिया था। अगर CM साहब जो है अपनी पार्लिमानी पार्टी और अपने कैबिनेट को सितंबर में ही बैठ के एतमाद में लेते तो 1 नवंबर को सूबा अनाउंस हो सकता था। ये बिल्कुल कंफर्म बात है, वो काम नहीं हो सका, उस पर रियासती इदारे भी नाराज़ हैं। दूसरा एजेंडा ये होता है कि वफाक आपको फंड्स देती है, पैसे देती है, उसके बावजूद लोग मुतमईन ना हो, पानी के लिए, बिजली के लिए, बेसिक इश्यूज़ के लिए, पुलिस अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए, सरकारी मुलाजिम तनख्वाहों के इजाफे के लिए सड़कों पे हों। सबसे ज़्यादा धरने इस हुकूमत के दौर में हुए। तो आपके दोनों जो एजेंडे थे, जो रियासत के एजेंडे हैं, मतलब वो दोनों नाकाम हो गए। दूसरे जिस एजेंडे की मैं बात कर रहा हूँ, मसलन यहाँ ख़वातीन अगर पानी के लिए सड़कों पे निकलती हैं तो आपका इंडिया जो है उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ GB में बगावत के तौर पे दिखाता है। वो भी रियासती इदारों के ऊपर बात आ जाती है, वो वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाते हैं। सो ये जो 2 इश्यूज़ थे बेसिकली, एक अवामी मसले मसाइल को हल करना, एक अबूरी आइनी सूबे में रियासती इदारे बहुत ज़्यादा तेज़ी में थे। वो काम जो था वो जो दिनों में हो सकता, हफ्तों में हो सकता था, 4-5 महीने ज़ाया कर दिए। जहाँ सितंबर में काम करना था वहाँ ये काम इन्होंने फरवरी में शुरू कर दिया, और जानबूझ के ट्रेजरी बेंचेस ने इस काम में रुकावट डाली। ये मेरे ख्याल में ये दोनों मसले थे। तीसरा जो मुझे नहीं समझ आई कि CM साहब जो है ना वो अपना सूबा छोड़ के इस्लामाबाद में जाके इतना लंबा अरसा बाहर गुजारने की उसको क्या ज़रूरत थी। वो यहाँ बैठते, इजला का दौरा करते, लोगों से मिलते, मसला मसाइल देखते, वकला से मिलते, सहाफ़ियों के साथ अपनी अच्छी इंटरेक्शन रखते, ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मसले मसाइल हल करते। तो कल CM के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई होती तो मेरे ख्याल में पब्लिक कम अज़ कम जो है ना वो उठ खड़ी होती कि CM साहब का मसला ये हुआ ना, ये चूँकि ऊपर से आए थे, ऊपर से आके, ऊपर एक तो रट्टू है ना, ऊपर से आके यूँ इन्होंने ले किया था, तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर सहाफ़ियों की, इधर आवाम की, ये तो मुझे लेके नहीं है। तो वो इस्लामाबाद। और दूसरी बात इसमें एक और बात हो गई, शाह साहब इसके ऊपर पहले भी बात की है। देखें, इन्होंने ये सोचा कि ये टीम को साथ लेके जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। जो लगा हमें, जो इन्फॉर्मेशन हमें आ गई, उन्होंने कहा कि इनको क्या पता है, जो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। कोई बंदा अक्ल कुल हो सकता है, कोई बंदा। इमरान खान मेरी तारीफ करते हैं तो इनकी, हाँ ये भी एक इशू था ना, प्राइम मिनिस्टर ने जहाँ एक पता नहीं वो अच्छे जो मशवरे इनको दिए गए ना इनकी टीम की तरफ से, उनको भी उन्होंने कहा कि छोड़ा नहीं, वो क्या और कॉन्फिडेंट हो गए जब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा सबसे बेहतरीन फैसला खालिद खुर्शीद को चीफ मिनिस्टर, उसने भी उसको शायद ख़राब किया ना बहुत ज़्यादा। खालिद खुर्शीद साहब के जहन में ये बात भी थी कि 2023 तो है ही है, 2028 तक भी PTI मरकज़ में है, ये भी उसके जहन में ये बात थी। ये बहुत सारे मेरी गपशप मेरे ख्याल में तो PTI वाला PTI के बहुत सारे हमारे दोस्तों के जहन में अभी भी ये है
कि चलो ये आगे पीछे हो गया, 2023 या 22 में इलेक्शन होगा, 2 तिहाई अक्सर से आएंगे, उसके बाद 28 तक पीटीआई मरकज़ में है, ये अभी भी बात कहीं पे चल इनके अच्छे खासे में जो लोग भी ये कह रहे थे कि जी इदारे इनके साथ हैं, ये पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है, हालांकि ये जो कर रहे थे वो एक साइड से सबके सामने था। नहीं तो अभी तक तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई सर, सिर्फ मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया आज, डॉलर 4 रुपये कम हो गया एक। अभी चला ये अलग मौजू है, लेकिन मैं आपको बताऊं जिस दिन अदम एतमाद कामयाब होगी, आप देखें स्टॉक एक्सचेंज किधर पहुंचता है एकदम। तो आपके इधर उधर से जो कर्जे देने वाले लोग हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना फिर क्रेडिबिलिटी होती है सर, क्रेडिबिलिटी भी होती है हुकूमत की। लोगों को पता है, दुनिया जानती है कि ये हुकूमत किस तरह। अब मुझे बताया ना, एक साइड से जिनको ये चोर कहते हैं सारे एक तरफ हैं पॉलिटिकल फोर्सेस, दुनिया तो ये देखती है ना कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस का इकट्ठा होना कितना मुश्किल होता है। नहीं अभी सीएम साहब मामला को दोबारा से अपने हाथों में ले सकते हैं, बैठ के आके सुबह में कल पहुंच रहे हैं, हफ्ते के रोज यहाँ पहुंच रहे हैं। मेरे ख्याल में तो सीएम साहब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, अब वो बस अपना कोई वाइंड अप का फिर भी अगर कोई जंगी बुनियादों पे यहाँ पे भाग दौड़ करें, मतलब इजला का दौरा करे, लोगों के मसले मसाइल देखें, क्या कर सकते हैं। अभी अंदर से सारी टीम इनके खिलाफ है, अभी इनके ही अपने सारे बंदे इनके सर। ये अभी हम ये बातें करते हैं, वो फिर आगे से ये कहते हैं ना, पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं। मसला ये हुआ है कि जो चीफ सेक्रेटरी इस वक्त बैठा हुआ है, वो तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर अभी मंडे को अपने ऑफिस में बैठेगा, उसका तो राइट हैंड है, वो तो अहकामत वहाँ से लेगा ना। अच्छा, उधर से राइट हैंड है, राइट हैंड है, राइट हैंड है। इसका मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो आपको पता है कि जवाल की तरफ जो भी हुकूमत जा रही होती है तो उससे लोग हटना शुरू हो। हाँ, वो थोड़ा सा डिस्टेंस। हाँ, अब तो ये लैंडिंग वाली पोजीशन पे है ना, अपना सफ़र ख़त्म करके आखिरी पोजीशन पे, तो अब तो आपको पता है कि ताकत जिधर खत्म नहीं। यहाँ पे जो आदम एतमाद के हवाले से जो 5 अप्रैल को असम्बली इजलास था, उसमें चूंकि वो 3 अप्रैल का एपिसोड हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला था, तो यहाँ पे बात ये थी कि उस वक्त वफाक में हालात यही ना, यहाँ पे ये बात थी कि ये जो सर कोरम जो पूरा नहीं हुआ, मिनिस्टर्स यहाँ वो बाहर टहलते रहे अंदर, उसका मतलब ये था कि 5 तारीख को वो सिचुएशन देख रहे थे कि वहाँ से क्लियर हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, फिर हम 11 को जो ना बैंड बजा देंगे कुछ ऐसे। तो ये बैंड बजाने जा रहे हैं 11 को। इसके हवाले से ज़्यादा मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, आपके पास एक मिनिस्टर रात भर बैठे रहे सर, आप कमेंट करें बस। नहीं, मसला ये होता है ना कि सामने आके पूरी रात आपके साथ उधर सामने होते हैं, तो यहीं पे बैठे, लेकिन बैंड बजाए नहीं बजाए, मैं ये आपको फिर बता रहा हूँ कि आदम एतमाद इस वक्त खालिद खुर्शीद के साथ नहीं है लोग, अगर हैं तो भी बहुत कम हैं जो आगे जाके छोड़ेंगे। वजह जाहिर है, देखें सर, वफाक में हुकूमत गई, यहाँ पे फिर उनके अपने जो मसले मसाइल आ गए, बाकायदा ऐलान पीडीएम ने किया कि जी अपोजिशन यहाँ हफीज साहब को आप कहाँ पे देख रहे हैं? हफीज साहब को कहाँ देख रहे हैं? हफीज साहब पीछे बैठ के देख रहे हैं, उनको कोई जल्दी नहीं है। अमजद साहब आगे हैं, चूंकि पीडीएम है ना, अमजद साहब फ्रंट पे कर रहे हैं। आज 11 अप्रैल का जो इजलास है उसमें ये आदम एतमाद की तहरीक पेश कर, पता नहीं इनकी तैयारी तब तक होगी नहीं होगी, लेकिन कर तो ये रहे हैं। आज इनका बाकायदा बिलावल साहब ने भी कह दिया ना कि तैयारी पकड़ उसी नोटिफिकेशन को कश्मीर और जीबी दोनों जो है ना आदम एतमाद की तहरीक आप पुट अप कर दें। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट, चूँकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको की तवज्जो मबजूल करवाई थी शाह साहब के स्पीकर का जो वो कॉन्फ्रेंस हॉल में ये इस्तेमाल हुआ, ये अमजद ने इस अपनी पीपल्स पार्टी की मीटिंग की सदारत की, और ये हुआ और बड़ी तादाद में उनके सीनियर्स उसमें। ये स्पीकर मानिकहज़ है। गवर्नर साहब सर क्या करेंगे? गवर्नर साहब का तो चलो सीएम के खिलाफ तो अदम एतमाद की बात है ना, गवर्नर को तो डिनोटिफाई करना है। किसी गवर्नर इस तरह होता है, वफाक में जो हुकूमत आएगी वो अपना नुमाइंदा इधर मुंतखब करेंगे, भेजेंगे। अब वो किसको भेजते हैं वो यकीनन पहले 1-2 महीने में तय हो जाएगा। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है कि चीफ मिनिस्टर अगर पीपल्स पार्टी से आता पीडीएम में, तो गवर्नर शायद नून लीग का हो सकता है, और फिर वो जेआई को भी मेरे ख्याल में कोई एडवाइज़र या कोई इस तरह के 1-2 ओहदे मिल जाए, इस तरह की कोई कम्बिनेशन बनेगी। अब यहाँ पे सीएम कौन आता है ये देखना होगा ना सर। सीएम तो अमजद की चांसेस ज़्यादा है ना, एक तो वो अंदर बैठा हुआ असेंबली में, दूसरा ये कि अपोजिशन लीडर मीन्स कि मतलब वेटिंग प्राइम मिनिस्टर या वेटिंग चीफ मिनिस्टर ही होता है। हाफिज़ हफीज़ रहमान बाहर बैठे हुए हैं, अगर वो असेंबली में होते तो फिर हम कहते हैं कि दोनों में से कोई एक आएगा। अब पीटीआई के अंदर से चेंज वाली बात तो मेरे ख्याल में, चूंकि ये तय हुआ था कि अगर सुप्रीम कोर्ट असेंबली बहाल करने जा रही है या कर जाती है, तो उसके बाद फिर अदम एतमाद का इशू आएगा, फिर मरकज़ में पीडीएम की हुकूमत बनेगी, तो उसमें फिर पीटीआई का चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। दूसरी सूरत में इसका उलट हो जाता तो फिर बात नज़ीर के ऊपर थी। ये अब भी है।
اچھا ابھی بھی ایک آپشن تو ہے ابھی. ایک آپشن یہ بھی ہے, نظیر کا آپشن ابھی تک باقی ہے. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.